Rahim. In the last lecture, we discussed about the fundamentals of fluid mechanics and some properties of fluid mechanics. We started from here, I think, compressibility. Before this, it is bulk modulus, then viscosity. Viscosity is one of the most important property of fluid. And by definition, we see that the viscosity of thin fluids like water is much low as compared to the thick fluids like honey and some types of other like hydraulic oils. Okay, so the fluid, the tendency of fluid particles to show resistance against the flow is called viscosity. And then we discuss about the Newtonian's law, Newton's law of viscosity, and this is the developed equation for that. And we discuss the shear stress and shear strain. Okay. And we define dynamic viscosity, which is equal to tau is equal to mu du over dy, where mu is viscosity, tau is shear stress, u is velocity, du change in velocity, dy change in depth. And kinematic viscosity can be defined easily by just dividing dynamic viscosity with density. Then we discuss Newtonian fluids, the fluids which shows the linear behavior, means the stress and strain are directly proportional, is called Newtonian fluids like water. The fluids which are above the this linear behavior means their angle is more than 45 degrees. Okay, as you can see that here, crude oil and mercury, and the other one is like gasoline and air. Okay, these all are non-Newtonian fluids. Effect of temperature and pressure. Then we see the example. Now we will start today from this example. So based on the definitions and the basic concepts of fluid mechanics, we will solve now some examples. The formulas are the same as we discussed and derived recently. So don't worry about the formulas, because these formulas are not very difficult. Because one or two formulae will be used to solve these problems. The first, for example, is A1. Sorry, a 1 inch wide space between two horizontal plane surface. This is horizontal plane surface of 1 inch. Is filled with SAE30 Western lubricating oil at 80 Fahrenheit. This is the name of lubricating oil. जैसे आप जाते हैं मैकेनिक के पास, उसे कहते हैं जी ऑयल चेंज कर दें गाड़ी का, तो वो कहता है जी कौन सा चेंज करें, तो डिफरेंट नेम्स होते हैं उनके, तो इसका नेम है at 80 Fahrenheit. Okay. What force is required to drag a very thin plate of 4 square feet area through the oil at a velocity of 20 feet per minute? If the plate is 0.33 inch from the one surface, so this is the plate. Okay. It is 4 by 4 feet, a square 4 square feet area. Okay. You are required to pull to drag this force at a velocity of 20 feet per minute. So how much force is required to do this job? The condition is this plate is placed at 0.33 inches from the top. It means it is 0.6 inches from the bottom. Area is 4 square feet, which is perpendicular to the board that you cannot see. Okay. So we will apply the formula of tau. Okay. We know that tau is equal to force per unit area. Shear stress is force per unit area, which can be written as mu u over y, or the final form that we last time we saw that it is tau is equal to mu du over dy. Okay. So we have two distances, one distance from the bottom and one distance from the top. The distance from the top is 0.33 inches, distance from the
bottom is 0.67 inches. So tau 1 is equal to, we will apply this, we put the values in this equation. So mu, this is the viscosity. So the viscosity of that particular oil at 80 Fahrenheit is given. यहाँ लिखा हुआ है from table A1, this is from book. अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये वैल्यू दी जाएगी. ये mu, suppose that you the value of viscosity is known in this case, which is 0.0063 pound second per feet square. Okay. टेबल है जिसमें ऑयल का नाम है और उसकी आगे टेम्परेचर दिया हुआ है, उसकी विस्कोसिटी वहाँ से फाइंड करते हैं, लेकिन आपको एक गिवन कंडीशन यहाँ पे. ओके, जस्ट पुट दीज नोन वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. So tau 1 is equal to 0.0063, this one, du over dy. Du is velocity, dy is distance. Okay. So velocity is 20 feet per minute. Feet per minute changes from feet per second. So that's why we divide it with 60. Distance is 0.33 from the top. So in inches, so we change this inches into feet to correlate all the units. Okay. So we are left with 0.0764 pound per feet square. This is tau 1, and tau 2 similarly. The only difference is this distance, which is from the bottom 0.67, change into the feet. You will get this tau 2. Okay. And we know that the total force is F1 plus F2. F1 is the force which is required due to the surface above the plate, and F force is the force required to pull this plate due to a lower surface. Okay. Surface below the plate. So F total force is F1 plus F2. We just sum up these two values, F1 and F2, you will get the total force. So 0.463 pound force is required to pull this plate with the velocity of 20 feet per minute under the given condition. Clear? आसान है बिल्कुल, एक दो फार्मूले लगने. Second example is, you can see this example, this figure. Okay. This is velocity distribution diagram. Last time we discussed that minimum velocity is normally observed near the surface, near the bed, and maximum velocity at the top. So in this case, a plate in figure 1-18 rests on top of the thin film of water. This is the plate. Okay. At a temperature of 25 degrees centigrade, when a small force F is applied to the plate in this direction, the velocity profile across the thickness of the fluid can be described as, when force is applied, how this velocity changes. The given equation is this one, u is equal to 40y minus 800y square. यानी आप y की वैल्यू पुट करेंगे हर पॉइंट के ऊपर तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी. ये इसका मतलब, ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी ये इक्वेशन आपको दे दी गई है. Where y is the distance, vertical distance, or it is the depth of water in meters. Determine the shear stress acting on the fixed surface and on the bottom of the plate. कहते हैं कि shear stress बॉटम पे कितनी होगी, टॉप पे कितनी होगी. आप बताएं shear stress कहाँ पे ज्यादा होगी. जब इस फोर्स इस प्लेट पे लगाएंगे तो shear stress यहाँ ज्यादा होनी चाहिए या बॉटम पे ज्यादा होना चाहिए. बॉटम पे सर, आई गेस. टॉप पे नहीं होनी चाहिए सर. आप बताएं ना टॉप पे कैसे. सर जितना Shear फोर्स stress, के पहले करीब shear होगा stress. उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी. नहीं, विस्कोसिटी की बात हम नहीं कर रहे. We are प्रेशर talking बॉटम about पे सबसे ज्यादा होगा ना. shear stress की बात हम कर रहे हैं. shear stress की मिसाल ऐसे है जैसे आप दो थैलियां आपस में दोनों हाथों को जोड़ के ना रगड़ें, जैसे सर्दियों में रगड़ते हैं, इससे shear stress. Two layers are moving
against each other. This is shear stress. आवाज आपको आ रही है पता नहीं क्या नहीं, ठीक है सर द टॉप पे मतलब तो प्लेट और वाटर की जो सरफेस है सर उसमें शीयर स्ट्रेस ज्यादा होगा फिर अच्छा कि दोनों जी, में और कोई इंटरेक्शन ज्यादा है दोनों नीचे से ज्यादा होगा। से ज़्यादा होगा, ठीक है चेक कर लेते हैं। सॉरी ये solution, sorry. Water is a Newtonian fluid, and so Newton's law of viscosity applies. The viscosity of water at 25 degrees centigrade is found from appendix A to B. Mu is equal to this given value. Before applying Newton's law of viscosity, we must first obtain the velocity gradient. The equation is called velocity gradient. So just apply the derivative of this. Yeah, 40y minus 800y square is given equation. So just apply derivation. You are left with 40 minus 1600y. Okay. At the fixed surface, now apply the boundary conditions. Boundary conditions mean सबसे बॉटम पे क्या वैल्यू है, सबसे टॉप पे क्या वैल्यू। बॉटम पे y की क्या वैल्यू होगी, यहाँ y की क्या वैल्यू है 0 सर। और यहाँ पे 0 यहाँ पे टॉप पे y की वैल्यू टॉप पे क्या है 10 mm 10 नहीं होगी 10 mm, ठीक है। Apply boundary conditions at fixed surface, y is equal to 0, so you are left with this 0, this is y in this equation, 35.9 megapascal. Okay, and at the bottom of the moving plate, यानी टॉप यहाँ पे bottom of the moving plate कितनी होगी, put y is equal to 0.01 meter. So when you calculate all this, you are left with 21.5 megapascal. So you can see that compare 35.9 with 21.5. It means कि वो कहता है by comparison the larger shear stress develops on the fixed surface rather than on the bottom of the plate, since the velocity gradient or slope du or dy is larger at the fixed surface. Both of these slopes are indicated by the short dark lines. Also notice that the equation for the velocity profile must be satisfied the boundary condition of no slipping, that is at the fixed surface y is equal to 0, u is equal to 0. कहते हैं फिक्स पहली बात तो कंक्लूजन ये है कि शेयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट द बॉटम। जितनी ज़्यादा लेयर्स ऊपर आती रहेंगी उतना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस बढ़ती रहेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेस आपस में बढ़ेगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट ये उसने कहा कि कब मुमकिन हुआ, जब आपने कहा कि नो स्लिप कंडीशन हो। नो स्लिप कंडीशन ये होती है कि हम एज्यूम करते हैं कि जो बॉटम बिल्कुल बॉटम पे वेलोसिटी है ना वो 0 है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बॉटम पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। नो स्लिप कंडीशन का मतलब है कि बिल्कुल बॉटम पे 0 है, y 0 है तो u 0 है, ये हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, आइडियल, नथिंग इज आइडियल देयर इन दिस वर्ल्ड। आइडियल क्या चीज़ है यार, द फ्लूइड विच हैज 0 viscosity. Do you know any fluid having 0 viscosity? क्यों जी, ऐसा फ्लूइड है जिसकी viscosity 0? वाटर सर। It does not exist. It not exist in reality, ठीक है, लेकिन हम उसको किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो ना हम आइडियल फ्लूइड ले लेते हैं, इससे कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है ना। समटाइम्स जहाँ आपका कंसर्न इतना ज़्यादा ना हो ना विस्कोसिटी के साथ, तो एक मिनट ज़रा वेट कर जी, अरे थोड़ी देर में कर लीजिएगा, क्लास है मेरी। आपका कल था है? अच्छा, सेटिंग की पक्की बात है। आप ऐसा करेंगे घंटे तक 12:30 तक आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, sometimes when you are not concerned with the viscosity, so you just neglect viscosity. कोई भी ऐसा आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं या
जैसे आप कोई डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें विस्कोसिटी से कोई कंसर्न नहीं है, तो यू जस्ट मेंशन दैट द फ्लूइड इज कंसिडर्ड एज आइडियल फ्लूइड। इसका क्या मतलब है कि हम विस्कोसिटी कंसिडर नहीं की। रियल फ्लूइड्स, ये देखें, आइडियल फ्लूइड इज द फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, means no friction, so in a pipe the velocity will be same across the cross section। ठीक है, हर जगह पे वेलोसिटी बराबर हो क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है ना। बट इन रियल केस द डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड अ पाइप इज लाइक दिस। हमने ओपन चैनल को देखा था कि ओपन चैनल में किसी नहर में पानी है तो वेलोसिटी सबसे मिनिमम नीचे होगी, मैक्सिमम ऊपर होगी, लेकिन पाइप फ्लो में ऐसा होता है कि सेंटर में मैक्सिमम। देख रहे हैं, दिस इज velocity distribution diagram of pipe flow, maximum at the top, minimum on the peripheries due to friction effects of water with the boundary of the pipe. Concept of cohesion and adhesion. Cohesion is the attraction between molecules of same surface. It enables a liquid to resist tensile stresses, like the attraction between the molecules of water with each other is called adhesion, cohesion. And adhesion is the attraction between molecules of different surfaces, like the combination of water and oil. एक पानी में oil शामिल कर दें तो oil की surface ऊपर ऊपर आ जाएगी, and this attraction between the molecules between the oil and water is called adhesion. तस्वीर से आप देख रहे हैं। The next important concept is surface tension. Surface tension is the property of a fluid which enables it to resist tensile stress. It's got surface tension. यानी वाटर पार्टिकल्स के ऊपर अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगे और वो इसको रेजिस्ट करे तो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, एट द इंटरफेरेंस बिटवीन लिक्विड एंड अ गैस, that is at the liquid surface and at the interference between two immiscible liquids, the attraction force between molecules from an imaginary surface film which exert a tension force in the surface, the liquid property is known as surface tension. यहां से समझना आसान हो जाएगा जरा। Just see the figure. See the figure 121A. Here two droplets are shown in this figure. The first thing, see this droplet, you can see that the forces on each side is equally, it means the other particles are attracting these particles equally in all directions. Is it clear? At a result, it will be in equilibrium form. It will be in equilibrium form. But what about this particle? You can see that this is at the top. The resultant force is vertically downward, definitely, because this vertically downward force is not balanced by the upward force because water is not available. So that's why this force will try to pull on this surface, is apply some pull or force. So this is called surface tension. ये जो पुल है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो होगी ना वो सरफेस टेंशन है। The phenomenon of surface tension can be explained here. The molecule located deep within the liquid has the same cohesive forces acting on it by all the surrounding molecules. Consequently, there is no resultant force and the effect of all such forces will produce a contraction of the surface. In other words, the resultant cohesive forces attempt to pull down on the surface. ये pull लगाएगी नीचे की तरफ, ठीक है? To separate the molecules at the surface requires a tensile force. Tensile force चाहिए आपको. We call this tensile force per unit length is in any direction along the surface tension. ठीक है? इस pull के against एक tensile force होगी, which is along the unit length. This force is called surface tension. समझ आ गई?
यस सर आ गई। सरफेस टेंशन आ गई। शुक्र। Capillarity, this is also a property of fluid. Capillarity, you can see these figures. Okay. The capillarity of a liquid depends upon the comparison between the forces of adhesion and cohesion. If force of liquid's adhesion to the molecules of the surface of its container is greater than the force of cohesion between the liquid's molecule, the liquid is referred to as a wetting liquid. This case कहता है कि जब लिक्विड पार्टिकल्स की आपस की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एडहियन फोर्स, तो आपका ये बनेगा वेटिंग, इसको कहेंगे वेटिंग लिक्विड, एंड यू कैन सी दैट द ड्रा डाउन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड इन दिस केस द मेनिस्कस और सरफेस ऑफ द लिक्विड, मेनिस्कस इसी को कहते हैं, ये surface of the liquid such a water is a narrow glass container will be concave if the adhesive force is less than the cohesive force. ये क्या हो गया, दोबारा पढ़ते हैं. If the force of a liquid adherent to the molecule of the surface of the container is greater than, अच्छा अगर adherent force ज़्यादा होगी तो ये बनेगा और coherent force ज़्यादा होगी तो ये बनेगा. बस सिंपल इसको याद रखें, ठीक है. एडहियन ज़्यादा होगी ये, कोहियन ज़्यादा होगी ये. एडहियन ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी जो कंटेनर है उसके दरमियान, उसके और पार्टिकल्स के दरमियान की जो फोर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है. और कोहियन के केस में जो वाटर पार्टिकल्स की फोर्स है वो ज़्यादा है, दोनों की अपोजिट वो बनेगी. ये जो कैपिलैरिटी इफेक्ट है ना, ये जो होता है कि पानी की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर अगर कोई आप ट्यूब लगा देंगे ना, कोई ट्यूब इंसर्ट कर देंगे तो इट विल राइज अप, दिस सेम फिनोमेना हैपेंस इनसाइड ऑल द ट्रीज. कैपिलरी एक्शन इतना ज़बरदस्त है, आप देखते हैं कि वो इतना ऊंचा दरख्त है, सफ़ेदे का दरख्त की हाइट जो है ना वो तकरीबन 100 फुट तो होती होगी, और पानी मिलता है जड़ को, और जड़ से वो कौन सा सिस्टम है जो पानी उसके 100 फुट पत्ते के ऊपर लेके जाता है. ना कोई मोटर लगी हुई है, ना कोई हैंड पंप लगा हुआ है, ना कोई और फोर्स. अच्छा अगेंस्ट द ग्रेविटी, एक और मज़े की बात है, अगेंस्ट द ग्रेविटी चलती है. ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन वाटर मूव्स अपवर्ड. जब पानी को एक रास्ता दिखाया जाए ऊपर जाने के लिए भी तो वो जाता है ऊपर की तरफ. कैपिलरी एक्शन एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, दूसरे टिश्यू से तीसरे टिश्यू के अंदर करते 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 इट विल joins the top of that particular tree, okay? the top leaves. ये कैपिलरी एक्शन जो है ये भी वाटर की प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेपर प्रेशर. Take a cylinder like this, fill with water, and see it in the next day. You will observe some vapors on the top, on the surface of this container, and the top lid. You can see some particles, water particles. What happens? This is the tendency of water particles to leave these particles from the surface of water body. These are called vapors, and these vapors they apply some pressure on this surface. It's called vapor pressure. So similar with the case of atmosphere. In the case of some water body like a reservoir, water droplets starts leaving the water surface, okay, and they move in the atmosphere, and at a particular height they start accumulating, okay, and many other particles they also used to join these starting particles, and at a particular temperature they apply some pressure on the environment, on the atmosphere, and the carrying force is the force of air. You can say that air is bearing the
the weight of these particles, and at a particular temperature, after the cloud formation, it starts condensation and there is fall. There is a chance of rainfall. So the pressure developed due to vapors is called vapor pressure. Okay? And the every air parcel has a certain amount of carrying these type of vapors. When a maximum limit comes, that the air is at its extreme level, means it is in saturated condition. This is called saturated vapor pressure. हवा के अंदर वेपर्स चले जाते हैं, अब हवा उसको सहारा देती है, हवा उसके वेट को बर्दाश्त करती है, लेकिन आखिर कब तक? जब तक एयर के अंदर ऑप्टिमम लेवल नहीं आ जाता, कि उसके बाद उसकी बस हो जाती है और मजीद वेपर्स आ नहीं सकते. दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन वेपर प्रेशर. ओके, so these are some conversions and units. वेरी इंपॉर्टेंट. मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मीटर्स हैं. ठीक है जी. So we start without wasting time. We're going to start our lecture number 2, fluid statics. Fluid statics. Fluid at rest at static condition. Okay, statics mean rest condition. Okay. At rest there are no shear stresses. Only force is the normal force due to pressure is present. जब पानी रुका हो ना, उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं, शेयर स्ट्रेस नहीं होती. शेयर स्ट्रेस तभी होगी जब कोई चीज मूव करेगी, दो सरफेसेस आपस में स्ट्राइक करेंगी, रिलेटिव मूवमेंट होगी, रिलेटिव फ्लो होगा, तो इसको तब शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी. सो इन स्टिलिंग वाटर स्टैटिक कंडीशन देयर इज नो शेयर स्ट्रेस. द ओनली फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू प्रेशर. सिर्फ फोर्स कौन सी है? जो उसकी डेप्थ की वजह से. ठीक है, ये ध्यान में रखें कि जब भी पानी की एक सर्टेन डेप्थ होगी तो पानी प्रेशर अप्लाई करेगा. डेप्थ बढ़ाते रहेंगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा, डेप्थ बढ़ाते रहेंगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा. ठीक है, अगर किसी जगह पे पानी की हाइट जो ना वो 5 फीट है, तो 5 फीट की उसका प्रेशर उसके अंदर तो है ना. अगर आप ये बढ़ा के 50 फीट कर देंगे तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ जाएगा. ये बात मानते हैं ना? ठीक है. Pressure is defined as force per unit area or amount of force exerted on a unit area of a substance or on surface. This can be stated by the equation, well-known equation, P is equal to F over A for finite area, P is equal to dF over dA for infinite area. Means whenever you need to distribute this equation to unit area, you will apply differential equation. And when you apply the result of this differential equation on the whole body, you do the integration. इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 1000 स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है फॉर द स्टूडेंट्स. तो यूनिवर्सिटी हर बच्चे के लिए वो नहीं करेगी, रूल तो नहीं बनाती ना, एक स्टूडेंट को सामने रख के रूल बनाएगी. इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएट किया उन्होंने, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई है एक स्टूडेंट के ऊपर. स्टूडेंट 1000 हैं, रूल एक है. वो एक रूल, वो रूल्स जो बने हैं वो एक स्टूडेंट को सामने रख के बने हैं. ये इसको कहते हैं डिफरेंशियल. जब एक स्टूडेंट के ऊपर रूल अप्लाई हो गया, अब उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया ओवर 1000 स्टूडेंट्स. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. फर्क समझ आया? You can see this is real picture of Myanmar's dam failure. डैम क्यों फेलियर हो गया यार? जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा, फोर्स पड़ेगी. फोर्सेस कौन कौन सी आ सकती हैं? ऑन दिस इज अ डैम बॉडी, वाटर इज ऑन द अपस्ट्रीम साइड, so there are possibility of water load. Water will apply some load, some force, some pressure.
ठीक है, एक ही बात है. देयर मे बी अ सिल्ट लोड ड्यू टू सेडिमेंट पार्टिकल्स, और जो रेत के ज़र्रात होते हैं वो भी लोड डालेंगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम विंड लोड and there is a possibility of some wave load, means due to earthquake भी आ सकता है, sinusoidal waves होंगी. It's also self weight of body as well, is applying force on it. This is the weight. जैसे आप बहुत मोटा आदमी है तो कहते हैं अपना वजन नहीं उठा सकता, क्या है वो अपना वजन भी उठाना है ना उसने. अब बहुत मोटे आदमी को थोड़ी सी भारी चीज दे देंगे, उसको तो ज्यादा भारी उठानी चाहिए, वो नहीं उठा सकता, उसने अपना उठाना है या वो उठाना है. So dead weight also carries by this body as well. आपको खुद भी उठाना पड़ता है. ऐसा ही है ना, मोटा आदमी ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, कमजोर आदमी जो पतला आदमी है वो ज्यादा वजन उठा सकता है. रीजन ये है कि वो कमजोर आदमी की तो वेट ही कम है, उसने अपना डेड वेट तो संभाला हुआ है ना. मोटा आदमी तो अपना वजन नहीं उठा सकता. So this is the self weight, and there is a possibility of some uplift load. This load is usually applied due to the seepage water particles. Due to seepage, water will apply some uplift load. So our design of a dam should be such that it can bear all these type of loads. In this case, this is a practical failure of a dam. It means this dam does not bear the applied forces, whatever the forces may be, either the water load or silt load or wave load or earthquake load, जो भी है. ठीक है, clear? Now, a very simple example. A load of 20 pounds is exerted on a piston. अच्छा जी, a load of 200 pounds is exerted on a piston. यहाँ पे लग रहा है लोड. Confining oil in a circular cylinder with an inside diameter of 2.50. यहाँ पे लोड लग रहा है, ये इसके ऊपर, ये पिस्टन है, इसके ऊपर लोड है 200 पाउंड्स का. इनसाइड डायमीटर है 2.50 इंचेस, स्क्वायर इंचेस. ये वो लिखा हुआ है, गलती से लिखिए इंचेस. कंप्यूट द प्रेशर इन द ऑयल एट अ पिस्टन. ऑयल प्रेशर कितना होगा? फ्लूइड है, पिस्टन है, लोड लग रहा है. बताएं कि प्रेशर इन द ऑयल एट द पिस्टन, यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा? बहुत प्रेशर लगेगा. कितना लगेगा? इफ यू नो द फोर्स, you will apply force per unit area, you will get the pressure. Force is 200 pounds, area is pi by 4d square, 4.91, 40.7 pounds per inch square. Simple, बहुत simple example है. Just आपने pressure find करना है force per unit area से. Now, some principles about pressure. Many scientists, they worked out on the principles of fluids in the field of fluid mechanics. One of the scientists is Blaise Pascal. The two important principles about pressure were described by Pascal, a 17th century scientist. The first postulate of Pascal theory is pressure acts uniformly in all directions on a small volume of a fluid. पास्कल ने एक बात ये कही कि कोई भी पार्टिकल है, हर तरफ से उसको इक्वली फोर्स लगेगी, इक्वल प्रेशर लगेगा. ठीक है, इक्वल प्रेशर लगेगा. सेकेंड थिंग इज, इन अ फ्लूइड कन्फाइंड बाय सॉलिड बाउंड्रीज, प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री. दूसरा पोस्टुलेट ये है कि फ्लूइड को किसी किस्म की भी बाउंड्री के साथ अगर आप फिल करें, बाउंड्री में फिल करेंगे ना, अगर बर्तन इस तरह का है, इस तरह का है,
इस तरह का है, इस तरह का है, द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, देख रहे हैं एरोज की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस. In case of rectangular furnace duct, in case of some pipe or tube, force is at the perpendicular direction. Here same in this case. Here you can see that this is a reservoir like structure. Straight walls, force is perpendicular. Inclined wall, force is at some angle, perpendicular. Okay. Same in the case of swimming pool. You can see if it is a semicircular or curved shape, on every unit volume, force is at the perpendicular direction. Same in the case of dam, same in the case of fluid power cylinder. ये बात समझ आ गई आपको? सर ये फ्लूइड्स की बात हो रही है, तो इसमें गैसेस में भी सर यही सिचुएशन होगी? देखिए ये सारी जितनी भी एग्जांपल है ना, इसमें दोनों मिक्स हैं. ये रिजर्वायर में पानी होगा, स्विमिंग पूल में पानी होगा, पाइप और ट्यूब में दोनों चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, दोनों चीज़ें हैं. पास्कल ने जो वो किया ना, वो उसका रिसर्च वो पानी के ऊपर थी. ठीक है, फ्लूइड के ऊपर. वरना ये अब पाइप में पानी भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती हैं, लेकिन डैम में गैस नहीं होगी ना, डैम में पानी है. तो दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, ओके सर. ओके. नेक्स्ट इज प्रेशर. नो, जो पास्कल की जो फर्स्ट पास्टुलेट है ना, वी आर गोइंग टू डिराइव दैट पास्टुलेट. वो क्या है? प्रेशर ऑन ए fluid particle will be same in all direction. To verify this or to derive this postulate of Pascal, we consider a wedge shape fluid particle. Wedge shape normally होती नहीं. wedge shape हमने ली इसके लिए ताकि हमारे पास inclined force भी आ जाए, inclined force भी आ जाए, ताकि हमारे पास तीनों डायरेक्शन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में भी वैल्यू हो, ताकि हर डायरेक्शन में पता लग जाए कि देखिए it is same in all directions. So that's why we consider a wedge shape element of a fluid at rest. The distance of the क्या कहते हैं इसको, bottom is dx, vertical distance is dz, horizontal dl, base perpendicular hypotenuse dx, dz, dl. dy is the width of this wedge particle which is perpendicular to the board, which you cannot see in 2D figure. So y is common in all directions. Okay, so consider that on this surface, on the base, a force is applied vertically upward. On perpendicular, force is applied in this direction, and on hypotenuse of this particle, force is applied at some angle alpha, which is equal to this angle. Okay, and you know that we know that force is equal to P into A. Pressure is equal to force per unit area. Force होगी pressure into area. ठीक है, on base or this surface, bottom surface, force is Pz dx dy. Dx and dy is the area. Pz, z represents direction, vertically upward. Okay, so Pz into dx, this surface, into its width, not showing here, perpendicular to the board. Okay, so P into A in this direction, this is Px, x shows the direction, dy into dz, this is the area. So F in this direction is Px dy dz.
force on the perpendicular surface is P, okay, not representing these surfaces, it is at some angle, multiply by dl, this distance, into dy, which is the width. Okay, so 1, 2, 3 forces are acting. The fourth one is its own weight. Okay, so because this is the wedge shape, okay, so we know that gamma is equal to जो आपका वो है स्पेसिफिक वेट है वो क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम. Specific weight is weight per unit volume. So weight is equal to gamma into volume. Weight is equal to gamma into volume. So volume gamma into dx dy is dz. So half is due to इसकी half surface है, ठीक है, half portion हमने लिया है. Okay. So you can see that there are 4 forces acting on this wedge-shaped particles in different directions: x direction, y direction, z direction. So we can easily apply the equation of equilibrium. Sigma f of x is equal to 0, sigma f of y is equal to 0, and sigma f of z is equal to 0. So if we apply sigma f of x is equal to 0, you can see that there are only 2 forces acting in x direction. One is this px dy dz. You consider it from right to left, it is negative, and from left to right it is positive. When you distribute this inclined force into its part, क्या कहते हैं इसको, x एक्सिस और y एक्सिस में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट cos थीटा, cos अल्फा एंड sin अल्फा. ये sin अल्फा और cos अल्फा के साथ आपके पास फोर्स आ जाएगी. ठीक है, ये राइट एंगल बन गई ना. एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो कंपोनेंट्स में जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये वर्टिकल फोर्स जो आपका इंक्लाइंड फोर्स है ये ख़त्म हो जाएगी. एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में चला जाएगा, एक कंपोनेंट वाई में चला जाएगा. ओके, स्पेसिफिक वेट सर हाफ. जी सॉरी जी, ठीक है. सर ये स्पेसिफिक वेट वाला सर बता देंगे. ये वाला जी सर ये स्पेसिफिक वेट वाला सर. हाँ, ये इसका डेड वेट है, वेट है, बस वेट समझ लें. हमने एक डिफाइन किया था कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, और वेट इसमें क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक यानी गैमा इनटू वॉल्यूम. ठीक है, तो देखें ये अगर आप इस पोर्शन को देखें ना, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. ये
ये पोर्शन देखें यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ये कम है। अगर ये बॉडी होती ना पूरी यूं, ठीक है, तो फिर ये वेट सेंटर में लगना था, तो ये बन जाना था गैमा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जी, ठीक है। तो इसके हाफ होने की वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगुलर ना, अगर ये पूरी होती तो फिर ये 1/2 ना होता। गैमा वी यानी गैमा वॉल्यूम, गैमा इंटू वॉल्यूम, दिस इज डेड वेट। सर सर इसमें हम इस तरह भी देख सकते हैं सर, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया जो ट्राइंगल के एरिया को अगर हम उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो ट्राइंगल का जो एरिया था वो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसको जब हम इसकी जी डायरेक्शन में जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल, इसको इस तरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। सिग्मा एफ ऑफ एस इक्वल टू 0, टू फोर्सेज अप्लाइड, वन ड्यू टू दिस एक्स कंपोनेंट, वन इज दिस फोर्स। आप इक्वेशन लगाएंगे और आपको यू नो दैट डी जी इज इक्वल टू डी एल कॉज एल्फा। ये अगर आप बनाए ना, ये राइट एंगल ट्राई एंगल, ठीक है, जैसे ये राइट एंगल ट्राई एंगल है, दिस इज डी जी, दिस इज डी एल। तो कॉस थीटा देखें किसके बराबर आएगा, कॉज अल्फा किसके बराबर आएगा, मुझे बताएं। ये ट्रायंगल कंसिडर करें, कॉज अल्फा किसके बराबर, ये सही लिखा है या गलत लिखा है, मुझे ये बताएं। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डी एक्स है, ये डी जी है, ये डी एल है, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, या कॉज अल्फा किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सर। तो ये सही लिखा है। ये सही लिखा है। बेस क्या है, बेस क्या होगी जी, सर यहाँ पे पी जेड डी एक्स डी वाई शो कर। नहीं मुझे बेस बताया ना, इसकी बेस क्या होगी, डी जी होगी सर। डी जी, शाबाश भाई सही है। हालांकि ये बेस नहीं है, देखिए आपका बेस डी एक्स तब होगी जब ये एंगल ये वाला होगा, याद है ना। जब ये एंगल लेते हैं ना तो ये बेस ये बन जाती है, यानी हम उसमें आप पढ़ते होते थे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, याद है कुछ। यस सर, सर जो एंगल Yes, के sir. सामने होती है साइड वो परपेंडिकुलर होता है सर। वो परपेंडिकुलर होता है, बस ये सिंपल है। जो एंगल के साथ जो है वो बेस है आपका, सामने वाला परपेंडिकुलर है। यहाँ उसने शो किया हुआ ना एंगल, खुद उसने बताया हुआ है ना। तो अप्लाई दिस डी जी डी एल कॉस, जी जी बताएं। जो साथ वाली होती है सर वो एडजेसेंट है, वो एडजेसेंट होती है सर ये एंगल के साथ वाली। बस एंगल के सामने वाला ना परपेंडिकुलर होता है, बस ये ध्यान में रखें, ये वाला ठीक है परपेंडिकुलर, सर। ठीक है। जब ये रिलेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, यू आर लेफ्ट विद पी इज इक्वल टू पी एक्स, ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। डी एल कॉस थीटा की जगह डी जी लगाए ना, डी वाई भी कटेगा, डी जी भी कट जाएगा, सिर्फ पी इज इक्वल टू पी एक्स रह जाएगा। समझ आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में एक ये फोर्स लग रही है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एक इसका कंपोनेंट लग रहा है, तो तीनों हमारे पास ये बन जाएंगे 1 2 3, ओके। निगलेक्टिंग थर्ड टर्म ड्यू टू हायर ऑर्डर, अब ये तीन डिफरेंशियल इकट्ठे आ गए हैं तो ये हायर ऑर्डर बन गई है, इट कैन नॉट बी सॉल्व इजीली, सो दैट्स व्हाई वी कैन निगलेक्ट इट, ठीक है। इतने छोटे डिफरेंशियल से वैल्यू वैसी बहुत कम हो जाती है। तो हमें पता है डी एक्स इज इक्वल टू डी एल साइन अल्फा, जैसे वहाँ कॉज अल्फा लिया था ना, इस तरह यहाँ साइन अल्फा लेंगे, आप वैल्यू पुट करें, यू विल गेट विद पी इज इक्वल टू पी जेड, ठीक है। नो वी प्रूव दैट p is equal to px and p is equal to pz, it means px is equal to pz। अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के,
तो A बराबर है C के, ऐसे ही है ना? Yes, So in this case, pressure on x-axis, pressure on y-axis is same. So similarly, we can also prove that P is equal to Py by considering a three-dimensional case. जब थ्री डायमेंशनल हमारे पास है फिर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं. बस यहाँ तक हमारा काफ़ी है कि Pz और Px दोनों सेम आ गए. It means Pascal law is verified and it is derived in this example. Okay. Here you can see in this figure. आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कभी कभी जब आप गाड़ी धुलवाने लेके जाते हैं ना, तो आप गाड़ी एक जगह खड़ी करते हैं और नीचे से जो ना वो एक लिफ्टर आता है और उसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाता है. ठीक है, और उस गाड़ी को सारी आपको वॉश कर देते हैं. What happens? Some piston is there applying some force F1 over the area of this piston Y1. It is shifted the pressure here at the area A2 and force F2. ठीक है, इस फिनोमेना के जरिए गाड़ी आपकी उठती है, इसलिए थोड़ी फोर्स से जो ना ये गाड़ी आपकी जो ना वो मूव कर देती है ड्यू टू प्रेशर. दिस इज अ पास्कल लॉ, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है. इक्वल फोर्स इज इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन की तरफ इक्वल फोर्स लगेगी. एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. The mechanics of a pneumatic jack used in a service station is shown in figure. If the car and lift weigh 5,000 pounds, determine the force that must be developed by the car compressor at B to raise the lift. कहते हैं यहाँ कितना प्रेशर होगा. Determine the force, यहाँ कितनी फोर्स लगेगी कि ये इसको लिफ्ट कर सके. 5,000 पाउंड इसका वेट है इस समेत. Air is in the line from B to A. B to A air है. Air line at B has an inner diameter of 1 inch. यहाँ पे diameter 12 inches है. कंडीशन समझ आ गई? एक तरफ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को आपने लिफ्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. राइट साइड पे कंप्रेसर लगा हुआ है, वो हवा है, हवा देता है तो पिस्टन अपवर्ड मूव करता है. ड्यू टू दिस फोर्स this piston will move up. The question is how much force is required to pull this 5,000 pounds weight vertically upward. ठीक है, इसका डाया 1 इंच है, इसका डाया 12 इंचेस है. कैसे निकालेंगे? सिंपल. Due to equilibrium condition, the force created by air pressure at A is equal and opposite to the weight of the car and lift. यहाँ कितना प्रेशर लग रहा होगा जितना इसका प्रेशर है उतना ही यहाँ पे लग रहा होगा ना पिस्टन ए पे. यहाँ पे क्या ख्याल है तो भाई? यस सर, तभी तो वो सर ऊपर अपलिफ्ट होगी. तभी ऊपर आ जाएगा. सो पी ए इज इक्वल टू एफ ए ओवर ए ए 5,000 पाउंड divided by pi by 4 d square या pi r square 44.21 pounds per inch square. PSI is applied at piston here. ठीक है. Since the weight of the air is neglected, the pressure at each point is the same in all directions. Pascal's law. हर जगह पे सेम प्रेशर लग रहा है, तो ये सेम प्रेशर लगते लगते कहाँ जाएगा? लगते 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 कहाँ जाएगा? बी तक जाएगा. Means same pressure is applied at B, so we can find force required at B by putting this value 44.21 psi as PB, because PA and PB is equal as per Pascal's law that we derived earlier. Okay, 44.21. So you can calculate FB 34.7. So
you can say that 34.7 pounds force is required to lift 5,000 pound car. समझ आ गई बात की? इस कार की यहाँ पे इतनी फोर्स चाहिए। तो ये जो आप जाते हैं ना गाड़ी धुलवाने, तो जो मैकेनिक्स होते हैं ये डिज़ाइंड होती हैं। किसी भी जो बड़ी से बड़ी गाड़ी वहाँ पे धुल सकती है ना, उसका वेट लेके, पिस्टन का वेट लेके वो फोर्स से डिज़ाइन हुई होती है कि कंप्रेसर से कितनी फोर्स हमने देनी है, ठीक है? या जो जैक हम लगाएंगे, वो जो हाइड्रोलिक लोड होगा, वो कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो लोड आ जाएगा। समझ आ गई? अगर कार का वेट सही कैलकुलेट नहीं किया तो भारी गाड़ी तो उसमें खड़ी, ट्रक तो खड़ा नहीं हो सकता ना, वो तो अप्लाइड फोर्स ही ज़्यादा है, इतना तो पिस्टन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हाँ, जो हाईएस्ट वेट है उससे नीचे जितना वेट मैरान धुलाएंगे तो आसानी से धुल जाएगी। जो बड़ी से बड़ी कार है जिसका वेट सबसे ज़्यादा है वो भी वहाँ धुलेगी, और छोटी सारी गाड़ियाँ धुल जाएंगी, रिक्शा भी धुल जाएगा, ठीक है? तो डिज़ाइन ऑफ दिस पिस्टन इज as per the weight of vehicle as well as the weight of this piston. So according to this weight and weight of the vehicle, we apply force here on compressor. ठीक है जी? सर जी सर ये कंटिन्यूस जी प्रेशर दी जाती है और फोर्स, जी सॉरी, ये कंटिन्यूस फोर्स दी जाती है उस कार को, अगर कार हमने लिफ्ट की है सर एक दफा, जहाँ तक तो जब तक लिफ्ट करना है, जब तक लिफ्ट करना है, आप देखना वो बटन दबाते हैं उस वक्त तक दबाए रखते हैं जब तक कार लिफ्ट नहीं हो जाती। कार लिफ्ट होती है बटन बंद कर देते हैं, वो अपनी जगह पे वो रुक जाती है वहीं पे। कंटिन्यूस तो नहीं होता ना कि उसको वो उधर बंद उसको करने के लॉक कर बाद। देते ना, ओके लॉक सर, कर देंगे, हाँ वापस छोड़ेंगे तो आप वापस उस पर आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। लॉक ऊपर लॉक कर देते हैं ना, ठीक है जी? अच्छा जी, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। एक नवा कानून है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, आपके लिए नया कानून है। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ pressure in vertical downward direction must be equal to specific weight of fluid at that point. Rate of change of pressure in vertically downward direction is equal to specific weight of fluid at that point. ठीक है? इसको हम प्रूव करते हैं, फिर एंड पे इसको डिफाइन दोबारा करेंगे, ठीक है? अभी तक के लिए इतना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है ये इक्वल होगा स्पेसिफिक वेट के। स्पेसिफिक वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर सी गैमा, ओमेगा गैमा गैमा से गैमा और गैमा गैमा से। गैमा, ठीक है? टू प्रूव दिस लॉ, कंसिडर अ बॉडी, फुल बॉडी। अब ये फुल बॉडी होगी है। दिस इज द फ्रंट व्यू, एंड इफ यू ड्रॉ अ सेंटर लाइन, one portion is at the bottom and the other portion is at the top. अगर इसको आप सेंटर से एक लाइन ड्रा कर दें तो हाफ पोर्शन ऊपर रह जाएगा, हाफ पोर्शन नीचे रह जाएगा, ऐसे ही है ना? When you consider this box, this is sigma y, सिग्मा z, ये डिस्टेंसेस हैं, ये इसकी डायमेंशंस हैं, सिग्मा x, वॉल्यूम क्या बन जाएगा इसका? बॉडी का वॉल्यूम क्या बनेगा? बताया ना यार, सर क्या इन तीनों एंटिटीज को सर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। मल्टीप्लाई, ठीक है ना? सिग्मा y इंटू सिग्मा z इंटू सिग्मा x, दिस इज द वॉल्यूम, मल्टीप्लाई विद गैमा, यू विल गेट द वेट ऑफ दिस बॉडी। अब ये पूरी बॉडी है तो हाफ नहीं है, ये गैमा है, ठीक है? तो वेट ऑफ द बॉडी इज दिस वन, गैमा इंटू सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z। कंसिडर द टॉप सरफेस, सपोज दैट अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द top direction, pressure is applied on the bottom direction. So due to direction, we consider the top force as positive and bottom force as negative direction.
So on the top there is a pressure, ठीक है, pressure P is applied plus change in pressure. जैसे जैसे नीचे जाएंगे देखना, rate of increase of pressure in vertically downward direction means pressure is changing. So P is applied pressure plus change in pressure per unit distance. ठीक है, कहां तक हमने कंसिडर किया सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन का डिस्टेंस बन जाएगा सिग्मा जी बाय 2 और नीचे वाला बन जाएगा सिग्मा जी बाय 2. ओके, समझ आ गई ना? एक सेंटर लाइन यहाँ ड्रा करेंगे तो हाफ ऊपर रह जाएगा, हाफ नीचे रह जाएगा. ऊपर वाले हाफ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये टॉप प्रेशर लग रहा है, नीचे वाले हाफ पोर्शन के ऊपर ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, ये फोर्स लग रही है. ठीक है, तो P is applied pressure plus change in pressure due to distance up to half of sigma z. So that's why it is multiplied by half into sigma s into sigma y. This is area. So pressure into area, that gives force. This is vertical force, downward direction. This is upward force, vertical upward force. So that's why this is minus. This is vertical downward force. It's a weight of the body. So we have three forces in, two are in same direction, one is in opposite direction. Okay. So sir? when सर जो पिछली आप, अच्छा हाँ जी सर, इसके अंदर जो वेट है, वेट इज गोना स्टे कांस्टेंट थ्रू आउट, यस जी, एंड इसके अंदर आपने वॉल्यूम का क्या बताया था? अच्छा एक सेकंड, और आपने जो प्रेशर का बताया था कि जो इस बॉडी को हम लोग हाफ करेंगे और ऊपर वाला जो ऊपर से आ रहा है एरो वो ऊपर वाला प्रेशर होगा, और जो नीचे से एरो आ रहा है वो नीचे वाले का प्रेशर होगा जब उसको हम हाफ कर लेंगे, राइट? और नहीं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो प्रेशर है वो ऊपर वाली हाफ सरफेस पे लग रहा है, नीचे वाला प्रेशर नीचे वाली हाफ सरफेस पे लग रहा है. हाँ, वंस दे आर कट, राइट, जब वो हाफ हो जाएगी. हाँ हाँ जी. अच्छा, ठीक है. और सर आपने इसकी वॉल्यूम का क्या बताया था? वॉल्यूम का हम वॉल्यूम देखें, 3 डायरेक्शन है ना, बॉक्स है ना एक, वॉल्यूम कैसे आप निकालते हैं? तीनों डायरेक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर दे, सिग्मा वाई सिग्मा जी सिग्मा एक्स एक्स वाई जी, तीनों मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम आ जाता है ना. तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट, दैट गिव्स वेट. वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? हम क्या कहते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू W ओवर वॉल्यूम. W is equal to volume into gamma. So this is weight of the body acting vertically downward. Okay. Similarly, in the previous case, we are going to apply the equilibrium condition. Sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0. The pressures on the opposite vertical direction must be equal. Vertical and vertical force and downward force are equal. So this change in pressure per unit direction in x direction is equal to change in pressure into y direction. ठीक है, मीन्स के प्रेशर दोनों साइडों पे हम बराबर कंसिडर करते हैं, जिस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, जो प्लस और माइनस है ये डायरेक्शन के लिए. ठीक है, समिंग फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, ये z डायरेक्शन में अगर आप सिग्मा एफ ऑफ z लगाएंगे ना तो ये फोर्स आ जाएगी, ये फोर्स आ जाएगी और ये फोर्स आ जाएगी. तो तीनों को प्लस करें और मल्टीप्लाई करें. तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि हमने हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर दिया था. ठीक है, तो इसमें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको जस्ट सॉल्व करें. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू आर लेफ्ट विद जस्ट माइनस गैमा. चेंज इन प्रेशर ओवर जी इज इक्वल टू माइनस गैमा. बाकी सारे ये चीज़ें कट जाएंगी, सब कट जाएंगे. ठीक है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंस P is independent of x and y, we can write the above equation in differential form. ये पार्शियल और ये डिफरेंशियल. ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पार्शियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं.
तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो डी पी ओवर डी जी इज इक्वल टू गैमा वाई. सो बाय सॉल्विंग दिस फिगर we are left with only minus gamma. Change in pressure per unit distance is equal to minus gamma. अगर इस इक्वेशन को मैं डिफाइन करूं ना तो मैं कैसे करूंगा? चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू गैमा. गैमा क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी है. तो यही डेफिनेशन है हाइड्रोस्टैटिक लॉ की. अब हम जाते हैं. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट. ठीक है. अब इसको मजीद हम अगर सिंप्लीफाई करें यू बाय अप्लाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल गेट dp is equal to gamma dz, p is equal to gamma z, or sometimes we write z is the vertical distance into form of h. You are left with p is equal to gamma h. p is equal to gamma h आपने पक्का रट्टा लगा लेना. ये इंतहाई यानी यूज होने वाली ये चीज़ है प्रेशर. ठीक है ना. कहीं भी अब देखें इसमें प्रेशर इज इक्वल टू गैमा एच. गैमा तो किसी भी फ्लूइड का कांस्टेंट रहेगा ना. सिर्फ आपको प्रेशर निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए? हाइट चाहिए. ठीक है. एक डैम है, डैम बॉडी है और डैम बॉडी के पीछे पानी अपस्ट्रीम साइड पे पानी है 50 फीट का. तो कैन यू फाइंड द प्रेशर? अब मुझे बताएं, प्रेशर फाइंड कर सकते हैं? यस सर. बाकी भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बात समझ आ गई. किसी भी बॉडी के साथ इफ वाटर इज इन कॉन्टैक्ट so the pressure can be found by just multiply gamma with height of water. This is called pressure. And practically we consider pressure as in the form of pressure head. H is equal to P over gamma. Gamma आ जाएगा. This is called pressure head. H is pressure head. तो normally हम जब प्रेशर की बात करते हैं ना तो हम प्रेशर हेड की बात कर रहे होते हैं. ठीक है. यानी प्रेशर हम प्रेशर हेड की फॉर्म में लेते हैं, एच की फॉर्म में लेते हैं. सो प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस इन हाइट ऑफ फ्लूइड. द टर्म एलिवेशन मींस द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सम रेफरेंस लेवल टू अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इज कॉल्ड जी. एलिवेशन से क्या मुराद है? एक जहाज उड़ रहा है, आप क्या कहते हैं? एलिवेशन कितनी है उसकी? एलिवेशन फ्रॉम व्हाट? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है. एलिवेशन फ्रॉम व्हाट? तो रेफरेंस पॉइंट इफ इट इज इन द बॉटम यू कैन सी दिस एरोप्लेन. इफ द रेफरेंस इज 0 is here in the bottom, this surface is at 150 meter, and if the reference is the center of this plane, then this surface is at 90 meters, this is at minus 60 meters. ये बात समझ आ गई आपको कि रेफरेंस सरफेस क्या है और एलिवेशन से क्या मुराद है? क्यों जी, आगे समझ? यस सर. बाकियों की भी आई है कि नहीं? आगे बोला सर. करो ना यार, बोला करो यार, बोला Yes, करो. sir, थोड़ा आगे सा समझ। यस सर. आगे ओ सर प्रेशर हेड. प्रेशर हेड की समझ आ गई कि नहीं? आगे सर. हाइट निकलती है सर वहां से. बस आपने आगे जो है सर ना P इज इक्वल टू गैमा एच पटका रट्टा लगा लेना है. बाकी कुछ भी याद ना रहे ना तो मसला नहीं है. कहीं सर हाथ प्रेशर पे निकालना लिख पड़ लिया. जाए हैं, सर हाथ पे लिख लिया. बस ये पक्का लिख लो हाथ पे. ठीक है. यस सर. So it's a very good comparison between two different fluids. You can see this this surface, this cylinder, and see the comparison with this cylinder.
if we apply a same pressure of 50 kilopascal, 50 kilopascal वो प्रेशर इसके ऊपर भी है, 50 इसके ऊपर भी है. व्हाट अबाउट द हाइट? ये हाइट कितनी होगी, यानी वाटर कितना ऊपर चला जाएगा और ये मरकरी कितना ऊपर चला जाएगा. आप ये देखें, देखिए मरकरी, वाटर की विस्कोसिटी कम है, यानी पानी हल्का है, तो इसका जो प्रेशर हेड है वो ज़्यादा होगा. P over gamma, P over gamma. You see, gamma of mercury is too much. That's why its pressure head is 0.376. समझ आ गई बात की? फर्क पता लग गया? By applying equal pressure on two different fluids, the pressure head might be different due to gamma. Gamma तो फर्क है ना? Okay. Next example. Next example is, you can see that an open tank contains water. Water है, इसके ऊपर oil surface है. Height is 1.4 meter HW. H oil is 2 meters. The specific weight of oil is gamma O. Specific weight of water is gamma W. And the specific gravity of water is 1. Specific gravity of oil is 0.855. Pressure applied at the junction or interface between the oil and water is Pi, and pressure at the bottom is Pb. You have to calculate Pb, यानी बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है. समझ आ गई? क्या करना है? Pb फाइंड करना है. दो सोल्यूशन दिए हुए, आप इस सोल्यूशन को देखें, नीचे वाले को, नीचे वाले सोल्यूशन को देखें. Pb इज इक्वल टू गैमा. P किसके बराबर है? गैमा H. Gamma H. So gamma H of oil plus gamma H of water, that gives Pb. Simple. So gamma of oil can be calculated by specific gravity. Gamma of oil 0.855 is specific gravity है, तो 9.81 gamma of water से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास gamma of oil आ जाएगा. H naught is 2, HW is 1.4, so you get 30.51 kilonewton per meter square. This is pressure at the bottom, but we have to find pressure in form of water column, means H की form में जब आप find करेंगे, so HWE is equal to PB over gamma W. gamma W इसलिए कि बॉटम के ऊपर वाटर का ही प्रेशर होगा, यानी वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट है ना. देखिए, टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम आपने फाइंड करना है. बॉटम इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम है, इसलिए हम इसको गैमा W लेंगे. 3.11 मीटर. समझ आई बात की? यस सर. यस सर. बॉटम पे प्रेशर होगा पानी की वजह से और ऑयल की वजह से, दोनों को प्लस कर देंगे. और जो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड हमने फाइंड करना है इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम, तो वी कैन यूज P इज इक्वल टू गैमा H, तो 3.11 मीटर आ जाएगा. These are some exercise problems for assignment. आपने नेक्स्ट वीक ये जमा करानी है. 3 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है. सीआर साहब ठीक है ना? Yes sir. Okay sir. So today we are talking about pressures, and practically in daily life we are observing different type of pressures: atmosphere pressure, gauge pressure, absolute pressure. Atmospheric pressure is the force per unit area exerted by the weight of air above that surface in the atmosphere of Earth. This is called
बैरोमीट्रिक प्रेशर, हवा जो पानी के ऊपर प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेयर की वजह से, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट से आप जो मेजर करते हैं ना, किसी मेजरिंग डिवाइस से जब मेजरमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। जैसे सीएनजी स्टेशन पे जाते हैं तो गेज प्रेशर लगा होता है, हवा भराने जाते हैं तो गेज प्रेशर लगा होता है, ठीक है। इस तरह बड़े बड़े पाइप्स जिनके अंदर गैस यानी गैस पाइप्स होते हैं ना, ये भी प्रेशर लगे होते हैं। सीएनजी वाले कहते हैं जी प्रेशर कम हो गया जी, कि सर्दी बहुत होगी, प्रेशर ज़्यादा है जी, आज पूरा प्रेशर है। दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। So in any case where atmosphere pressure and gauge pressure both are known, this is called absolute pressure. वाटर के केस में, फ्लूइड के केस में, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से आप प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, ये गेज प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर प्रेशर भी शामिल कर लें, तो दिस बिकम्स एब्सोल्यूट प्रेशर। दैट्स व्हाई यू कैन सी P absolute is equal to P atmosphere plus P gauge. So how can we measure these pressures? We have different devices, different instruments, including barometer, Bourdon gauge, pressure transducers, piezometer column, simple manometers, and differential manometers. We will discuss one by one. Barometer, first one, very simple instrument is there. Barometer, it is used to measure atmospheric pressure. You can see this figure. It's a mercury barometer. The procedure is immerse the open end of tube in a liquid which is open to atmosphere. ये open to atmosphere एक बर्तन के अंदर अपने liquid लिया है, ठीक है। Liquid will rise in the tube if we exhaust air from the tube. If there is no air inside this tube, the fluid will rise, the liquid will rise. Okay. If all the air is removed and the tube is long enough, then only pressure on the surface is the vapor pressure, and liquid will reach its maximum possible height gamma. तो इस जो बिल्कुल टॉप पे जब चला जाएगा, because the surface is closed, so at this surface यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? जस्ट वेपर प्रेशर होगा। अगर वेपर प्रेशर यहाँ पे नहीं है और कंसिडर हम उसको नहीं कर रहे, देन दिस y मल्टीप्लाई बाय गैमा इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आई बात की? बैरोमीटर है, ट्यूब इंसर्ट की, वाटर विल राइज अप टू सर्टेन हाइट y, and there is a possibility that at the top there is the vapor pressure, so the total pressure will becomes gamma y plus P vapors, and if vapor pressure is, we have no information about vapor pressure or it is negligible, then gamma y is the atmospheric pressure. Simple वही formula, P is equal to gamma h. Okay. The another device that we have to find pressure above or below the atmospheric pressure may be easily measured with the help of Bourdon's tube pressure gauge. ठीक है, Bourdon gauge हमारे पास एक डिवाइस है जो प्रेशर फाइंड करती है। किसी पाइप में प्रेशर है, ठीक है, और आगे डिवाइस लगा दें Bourdon gauge, so there is a fluid inside. इससे मुतल्लिक हम एक जो है ना वो प्रैक्टिकल भी है हमारा, इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे Bourdon gauge से रिलेटेड। It consists of elliptical tube bent into an arc shape of a circle. This bent up tube is called Bourdon tube. Bourdon tube स्केल लगा हुआ है, जैसे ही प्रेशर आता है this scale will move to show readings on this scale. सिंपल, एक डिजिटल गेज जैसे होता है, गेज या मैनुअल गेज ही समझ लें कि प्रेशर आ रहा है और आगे प्रेशर वो बता रहा है, ठीक है, स्केल के ऊपर आ रहा है, तो दिस इज Bourdon gauge. Tube changes its curvature with change in pressure inside the tube. Higher pressure tends to straighten it.
ये स्ट्रेट हो जाती है, ये स्ट्रेट होती है तो ये स्केल घूमता है, एक पॉइंट पे आपको बताएगा कि इतने psi प्रेशर है। द मूविंग एंड ऑफ द ट्यूब रोटेट्स नीडल ऑन अ डायल्स टू अ लिंकेज सिस्टम। इस तरह की इंटरनल असेंबली होती है इसकी, सेम इस तरह का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज पीजोमीटर कॉलम। A piezometer tube is the form of instrument used for measuring moderate pressure. देखें, हम जो अभी तक हम प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हाइट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ हाइट कर रहे हैं। यानी एक वर्टिकल ट्यूब है तो उसमें पानी जितना ऊपर तक जा सकता है वो हाइट मेजर करेंगे और उस पर्टिकुलर फ्लूइड के गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही कर रहे हैं ना अभी तक। तो यू कैन सी दिस पीजोमीटर, ये एक पाइप है, दो इसमें देखें इसकी ट्यूब्स निकली हुई हैं यहाँ से। The height of these tubes is such that it should not overflow. So whenever some fluid flows inside this pipe, it will go in this direction. Okay, we can measure pressure by pressure head. H is equal to P over gamma. ठीक है, सिंपल पीजोमीटर कॉलम। समझ आ गया ये? अभी इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी करेंगे, इंशाल्लाह सही समझ आ जाएगा। अच्छा, जो पीजोमीटर है ना, इसमें सिर्फ फ्लूइड होगा, यानी हम प्रेशर लगा रहे हैं और फ्लूइड कितना ऊपर जा रहा है, जो भी है, वाटर है तो वाटर के लिए, ऑयल है तो ऑयल के लिए। लेकिन देखें इसकी लिमिट होगी ना, ये कितनी लंबी आप बनाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आएगा तो ये ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसा ही है, क्यों जी? बिल्कुल बोलो सर। ना, ऐसे है ना। तो हम अब क्या करना चाहिए हमें, हम यहाँ पे ना कोई और फ्लूइड लगा दें, यानी इसमें कोई और फ्लूइड डालें जिसकी मूवमेंट ज़रा कम हो, तो दोनों साइड पे हम रिलेटिव उसकी जो उसकी डिस्टेंस है ना वो मेजर करके प्रेशर निकाल सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ना मैनोमीटर्स हैं। मैनोमीटर क्या करता है, एक पाइप है, इधर कोई और फ्लूइड है, जैसे यहाँ पे मरकरी है। अब मरकरी बहुत आहिस्ता मूव करेगा, ठीक है, मरकरी आहिस्ता मूव करेगा, तो यू कैन ऑब्जर्व मोर प्रेशर, यू कैन कैलकुलेट मोर प्रेशर बाय यूजिंग मैनोमीटर। इसकी थोड़ी सी भी जो मूवमेंट होगी ना, इसका वाटर का अच्छा खासा प्रेशर होगा। ये पाइप है, यहाँ से वाटर मूव करेगा, मरकरी को आगे जो ना धकेलेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो यू विल आफ्टर अप्लाइंग द इक्वेशन, ये नेक्स्ट टाइम हम इस इक्वेशन अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, तो वी विल मेजर मैनोमीटर। आपने बस डिफरेंस याद रखना, पीजोमीटर में सिर्फ फ्लूइड है जिसकी आप प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, मैनोमीटर में हम एक रिलेटिव फ्लूइड कोई और फ्लूइड भी दे देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर, औरों को तो बोलने दो ना। नो सर।